Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव परिणाम से फिलहाल विपक्ष काफ़ी उत्साहित है, होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का दक्षिण का किला ढह गया है। लेकिन क्या कर्नाटक चुनाव परिणाम का असर 2024 के आम चुनाव पर भी होगा? प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कर्नाटक की अहमियत अलग है और लोकसभा चुनाव का परिणाम अलग तरीके से आएगा। बहरहाल विपक्ष रणनीति बना रहा है। ममता बनर्जी ने जो इसको लेकर के कहा है वो कांग्रेस को थोड़ी सी चुभेगी। उनका कहना ये है कि ऐसे नहीं, इसमें जो है ये सिस्टम बनना चाहिए विपक्ष के बीच में कि जो जहां मजबूत है वहीं पे चुनाव लड़े और दूसरा और विपक्षी दल उसको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस हमसे लड़े और जगह पे सपोर्ट ले। सुनिए वो क्या कह रही हैं। I am not a magician and I am not at all an astrologer. I cannot say what will happen in future. But you are Englishian, so I am speaking in English. My English is very poor. But I can tell you one thing, that please just see one thing. Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized and frustrated, and for the incumbency and all this. Suppose Karnataka, the vote is, it is against of the verdict of BJP government, if you see the verdict. So like this, people are antagonized. Atrocious is terrible. Economy has already ruined. Democratic rights is been bulldozed. Even the wrestlers are also not spared. So at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. Bihar, they are together, so they Nitishji, Tejaswi and Congress also some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice, but I think that wherever the regional party is very strong, suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. Suppose in UP, of course Achilles is to give the priority. The Ajit Singh is there also, they have other combination. I am not telling that Congress should not fight there. It is, let us decide this. It is not at the final stage. When the matter will be discussed, then we can discuss into in details. Now everybody is thinking something. सुना आपने
ममता बनर्जी की राय ये है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, हमारा सहयोग करे। आप कर्नाटक में मजबूत थे, कर्नाटक में चुनाव लड़े और जीते। ठीक इसी तरीके से जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहाँ पर और दल इंक्लूडिंग कांग्रेस सब उसकी मदद करें। लेकिन यूपी में क्या होगा? यूपी में कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मजबूत है, फिर कांग्रेस क्या चुनाव न लड़े। वहाँ पे वो रास्ता ये कह करके निकालती है कि कांग्रेस भी मिल बैठ के बात कर ले, अपने तरीके से देख ले, उसे लगता है कि इस सीट पर वो चुनाव लड़ने की स्थिति में है तो लड़ ले। तो ममता बनर्जी का जो पूरा जोर है वो है क्षेत्रीय दलों पे। और अभी तक पूरे देश में गौर करेंगे, चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, तो पाएंगे कि जितने भी क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं वहाँ का बीजेपी का जब मुकाबला हो रहा है, इवन आम आदमी पार्टी दिल्ली, तो क्षेत्रीय दल भारी पड़ जाते हैं। विधानसभा चुनाव तो वो निकाल ही लेते हैं। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो थोड़ा उसका ट्रेंड अलग हो जाता है। ट्रेंड इसलिए अलग हो जाता है कि लोगों के जहन में ये बात रहती है कि हम प्रधानमंत्री और देश की सरकार चुन रहे हैं, लिहाजा उस समय वो थोड़ा उधर झुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा की बात आती है वैसे वो क्षेत्रीय दल की तरफ सरकने लगते हैं। अब जैसे यूपी एक बड़ा राज्य है जहाँ का आबादी 24-25 करोड़ हो रही है। यूपी में बीजेपी सत्ता में है, पिछले 6 साल से सत्ता में है। यूपी छोड़ दीजिए, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े थे, अब जो है पाला बदल करके उधर चले गए हैं। तो सब जगह की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल जहाँ मजबूत है उसके लिए वो ये फार्मूला दे रही है। अब आप सोचिए ज़रा कि क्या कांग्रेस मान जाएगी? यानी आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूत हो गई, सत्ता में आ गई तो, और दिल्ली में मजबूत हो गई, तो कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़े। यही सारी जो शर्तें हैं वो आगे चल कर के विपक्ष के बीच में रिफ्ट का कारण बनने वाली। नीतीश कुमार गए तो थे उड़ीसा में, नवीन पटनायक से मिल कर के आए, नवीन पटनायक ने टका सा जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि नवीन कुमार को पता है कि उनकी राजनीति है वो उड़ीसा तक सिमटी हुई है और वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उनकी लड़ाई है। तो कैसे कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं? कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे उस दिन उनका वोट बैंक खिसकने लगेगा। इसीलिए तो नीतीश कुमार से उनके पुराने संबंध है, इसके बावजूद उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। तो राज्यों का इंटरेस्ट, इन नेताओं का, क्षेत्रीय दलों का इंटरेस्ट जो है राज्यों में टकरा रहा है। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में चाहे लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, वो उनका उस तरीके से विरोध न करे, क्योंकि वो अकेले बीजेपी से लड़ रही हैं और लेफ्ट कांग्रेस मानेगा नहीं। लेफ्ट अभी आया भी नहीं, कांग्रेस खैर आ रही है विपक्षी एकता के साथ। तो ये दिक्कत है विपक्षी एकता में। हालांकि अभी 8 महीना चुनाव होने को है, तब तक न जाने राजनीति कितनी रंग बदलेगी और उसके बाद जो कुछ भी निकलेगा तब जाकर के पता चलेगा कि कौन कहाँ पर खड़ा है। बीजेपी तो अपने तरीके से तैयारी कर रही है, एनडीए में जो भी छोटे छोटे घटक दल बचे हैं उनके साथ और कुछ और दलों को जोड़ने के लिए वो तैयारी कर रही है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि बिहार में इवन मुकेश सहनी पे भी डोरे डाले जा रहे हैं। अभी चिराग पासवान जो अलग थलग पड़े हुए थे उनको अचानक जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। तो ये इसे उसी क्रम में, तैयारी के क्रम में ही देखा जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है और राजनीति अभी कितनी करवट लेती है। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।